Good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you for the response. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Mm, mm. Okay, so let us begin. We'll take small recap. Till now, the steps that we have completed and we understood is that typecasting, duplicate,
finding out duplicate not only in the row basis, but also in the column basis, which is correlation. Then balance or imbalance data set, how to understand, first of all, whether how to identify if the data is balanced or not. And then if it is, then what method should be applied over there. Then we also understood about imputation, where different variants of missing values are there. Based on that, we need to impute those values. In that, normally, the thing is said like we use mean. Mean is nothing but an average, okay? Average. And median and mode. These are, let's say, three generalized method. Over that, we also have something called constant and random. Constant and random. So those were the things we discussed till now. Above that, we also have something which is actually helping to reduce the uh, dimensionality, which is one of the method over here, and also this zero variance or near to zero variance. Then first of all, we'll understand what exactly variance is. Again, theoretical part has already been covered, so I don't think that would be taking a huge effort to understand that. But anyhow, variance is nothing but whenever we talk about any variance, so there should be a variance in a data set. It should be low, it should not be very high, but variance is necessary, as if everything is following a constant line or a constant growth, there you don't have to do any analysis because everything is following as per requirement. So there we don't have to do any analysis. But if there is not, if there is a change in a path, or let's say if there's change in um, observation, then yes, we should do some analysis like this. So we need to do analysis, and that is required. But also, on the other hand, we should remember that it should not be far away. It should not be a huge difference. Otherwise, it would be noise. Noise is nothing, again, is also called as an outlier. Okay, outlier like that. So this should not be the scenario. Okay, at certain amount of, let's say, level, or at certain amount of interval, up to some certain time, it should be considered. Otherwise, above that, it should be relieved, or it should be left out. We should not consider that value. So the variance is that when you are calculating distance between what you are, let's say, expecting and what the actual value has been there. So the difference of that is called the deviation. And when you take overall deviation of a data, it is called variance. Variance is nothing but how much distance or how much away the data points have been created. Okay, that is that. So that was regarding variance calculation, but also we need, as I said, the other side. We say that there should be variance, but we can also use that that particular knowledge on other side, say that if any analysis has to be done. So if someone is doing analysis based on, let's say, salary, which is 10,000. Okay, 10,000 is a salary, and there is only one value, only 10,000, which is been recorded continuously. The same value is been continued. Or let's say if there is only 9,999, that is the least value which has been that is the let's say frequency, the difference in that. If these are the frequency, or let's say if these are the differences between this, so it has zero variance or near to zero variance. Zero variance means if every value is 10,000, obviously there will be only 10,000 as a variance. There will be no variance. There will be zero variance, isn't it? There is no variance because every data following over here is 10,000. So there will not be, there will be zero variance. So we don't want that column. Also, if it is very near to zero or near to zero means, near to zero means if 0 0.95, 0 0.96, 0 0.56, any value which is less than 1, if that variance is there, we don't want those. This happens not only in the numerical column, but also happens in a categorical, where, for example, if there is a, let's say, gender column as a categorical, if there are only records of male, only male records are there, but somehow one female record is there. For example, if you take total records of male were 100 and total record were 100, and in that female record was 1 and male record were 99. So in this scenario, there is no analysis has to be done over here. Okay, like this. So we can reduce those number of columns. That is the variance. Now, the important part is outlier. Identifying extreme values or values which affect
any univariate column, any distribution of a data. Outlier over here is nothing but an extreme value which can be in both side, in negative, in a lower side also, or it can be on a positive side also. पॉजिटिव से कहूंगा कि मैक्सिमम साइड भी हो, मिनिमम साइड, दोनों तरफ. Now, in Excel, let's say for example, if I took, let's say if I take this fair as a column, and if I say insert with recommended all chart, we have something called box and whiskers over here. Okay, this is how it comes over here. This is how it comes over here. Now if this is fair, fair means the price that has been paid, है ना, जो हम पे किया गया है स्पेसिफिकली टिकट के थ्रू, बेसिकली जो वो उसके बारे में आपको फेयर बताता है यहाँ पे. बट इफ यू लुक ओवर हियर, you will see that if you look over, you will see that it has started to take outlier values above like this. If you see over here, okay, it is taking above. Let's say I will, because there is 500, so it would be very difficult to implement this. 100 intervals is there. If let's say 50 को अगर हम एक्सिस को मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डबल क्लिक करना है, एक्सिस ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाता है. यहाँ पे आपको बताया मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, और टिक मार्क्स के बीच में इसमें हम क्या करेंगे, एक्सिस को थोड़ा हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कैटेगोरिकल जनरल. कैटेगरी में नहीं है क्या? मिनिमम 0, मैक्सिमम लेट्स से 550 550 ना, इस तरह से क्या 50 का गैप आ जाएगा उसमें. और 512 वैल्यू. ओके, सिक्सटी फाइव के ऊपर बता रहा है. ओके, आप मेरे टूल टिप पे आके देखोगे तो विल सी दैट देयर इज सीरीज fair point which is 1 and value up to 65. So anyone who has bought a ticket for 65, तो उसके आगे जितने लोगों ने भी प्राइस दिए हैं 65 के अबव, उन 65 के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनको उसने क्या कहा है, आउटलायर नहीं कंसिडर किया है, और 65 के अबव जितने भी वैल्यूज को आउटलायर कंसिडर कर रहा है. नाउ ये कैलकुलेशन हुआ कैसे, कैसे इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और कैसे हम यहाँ पे बता पा रहे, हम मतलब ये सिस्टम कैसे कैलकुलेट कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यू 65 के वो जितने भी सब आउटलायर है और उसके अंडर में है वो आउटलायर नहीं है, कैसे डिसाइड हो रहा है. ओके, नाउ फॉर दैट आपको पहले जानना होगा कि इसका मेथड क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है कि हम आउटलायर आइडेंटिफाई करते कैसे हैं. आउटलायर मतलब अगेन इट्स द एक्सट्रीम वैल्यू विच इज इनसाइड योर. अभी ये कौन सा चार्ट है हमारा, ये हमारा है प्राइस का, फेयर. जस्ट रीनेम दिस ताकि हम कंफ्यूज ना हो बाद में. फेयर करके जो हमारे टाइटैनिक में, ओके, फेयर प्राइस, फेयर ये प्राइस है टिकट का, सो दैट इज वैल्यू.
ना इसका कुछ मेथड है इसमें, देखो पहले एक तो होता है मेथड आपके पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलायर के लिए कैपिंग मेथड कहते हैं। कैपिंग मेथड मतलब क्या है? कैपिंग मेथड में कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, और लेट्स से इन शॉर्ट डिटेक्टिंग मेथड, डिटेक्टिंग मेथड फॉर आउटलायर्स। ओके, डिटेक्टिंग मेथड्स में होता है, देखो एक होता है आईक्यूआर मेथड, इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बाद में होता है दूसरा है जो गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन मेथड। फिर उसके बाद में होता है एक क्वांटाइल, क्वांटाइल। ओके, ऐसे तीन मेथड्स है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? सी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आईक्यूआर, आईक्यूआर हमेशा इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हर एक का कुछ ना कुछ मेथड होगा, तो आईक्यूआर का फॉर्मूला कैलकुलेशन का क्या है? आईक्यूआर वो हियर मींस Q3 minus Q1, एंड टू कैलकुलेट Q3 minus Q1 उसके बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, UL एंड लोअर लिमिट। इनका फॉर्मूला है Q3 plus 1.5 times of IQR and IQR। तो पहले आपको मैं जो IQR का है ये वैल्यू ये है क्या वो बताता हूँ, और फिर मैं आपको बाद में बाकी का बताऊंगा। सो अभी ये जो आपके सामने ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना फेयर का जो दिख रहा है, दिस इज आईक्यूआर मेथड। आईक्यूआर मेथड में होता क्या है, आप तो पहले क्या करते हो, जितनी भी आपका फेयर प्राइस है, आपका जितना भी फेयर प्राइस उसका निकालते हो मीडियन। ओके, उसका क्या निकालते हो? मीडियन। तो पहले हम चेक करते हैं मीडियन क्या है। मैं आता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, मीडियन ऑफ फेयर, है ना फेयर का, सॉरी वो फेयर अलग है, ये फेयर अलग है, इज इक्वल टू मीडियन मीडियन वैल्यू आई है अपनी 14.45। हाँ ये देखो, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए, देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये हल्का सा लाइन देखो, इस लाइन के ऊपर मैं रखता हूँ, देखो 14.4542, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये मीडियन, दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये वैल्यू है यहाँ पे, ये मतलब क्या होता है, आपके पूरे फेयर प्राइस के डेटा को वो क्या करता है, सेपरेट करता है। मीडियन क्या करता है? नाउ हाउ दिस हैपेंस और हाउ द कैलकुलेशन हैपेंस ओवर हियर, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखो आपको मिनिमम वैल्यू, मैं से एक लाइन बना देता हूँ, ये एक मिनिमम वैल्यू है, एक लाइन यहाँ पे है, ये है मिनिमम वैल्यू, इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ इसे, पहले तो क्या करता हूँ पॉइंट ही कर देता हूँ सब। ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम, लाइक दिस। ओके, नाउ बियॉन्ड दैट, या फिर उसके पास अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाते हैं। सो दिस आर द डेटा। अब डेटा कैसे जुड़ा है, देखो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक ऐसे चल रहा है। ओके, डेटा क्या है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, सॉर्टेड है ऑर्डर में, असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो ये मिनिमम है।
and this is maximum. Now with this आपका मीडियन वैल्यू क्या कहता है ना? मीडियन जैसे मैंने आपको कहा था पहले, आपको जो फेयर का जो कॉलम है उसको पहले ऑर्डर होगा, सॉर्ट होगा। ओके, कौन सा भी ऑर्डर, ऐसे कोई से भी ऑर्डर में होगा। तो अगर इवन है ऑड है तो इवन है होगा, तो जो मिडल के दो वैल्यूज है उन दोनों का 1 और 2 का एडिशन होगा, 1 + 2 एडिशन एंड देन डिवाइड बाय 2 होगा बीच का जो वैल्यू है। और अगर ऑड है तो बीच का जो भी मिडल वैल्यू है उसको डायरेक्टली आपको कंसिडर करना है, मिडल वैल्यू को। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे रेडी हो गया। तो जो 14.45 जो वैल्यू है, जहां कहीं भी लाइन में होता होगा वहां पे क्या बनेगा आपका, ऐसे लाइन बनेगा ऐसे। ये मिडल वैल्यू है, मिडल मोस्ट ऐसे वैल्यू। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस मिडल वैल्यू योर डेटा विल बी डिवाइडेड 50% ओवर हियर, 50% ओवर हियर। ओके, मिडल से आपने 50-50% कर दिया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस, अब आपका डेटा क्या हो गया 50%। अब इसको मैं और डिवाइड करेंगे। ये इसका आधा डिवाइड किया, ये इसका आधा डिवाइड किया, ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25। टोटल हो गया आपका 100। ये हो गया टोटल 100 परसेंट, 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 परसेंट। ओके, 25 25 25 से 100%। अब इस पूरे डेटा को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने जो यहाँ पे क्रिएट किया 25 से, क्योंकि जो 50 था उसको डिवाइड 50 को, तो ये पॉइंट क्या कहेंगे हम, इन दोनों के बीच का जो हाफ कर रहा है इसको कहेंगे हम Q1, और इन दोनों के बीच को कहेंगे हम Q3, क्योंकि Q2 यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या आपका Q2 ऑलरेडी है। ओके, सो Q1 से Q3 ये जो लाइन है, Q1 से Q3 का जो लाइन है इसे कहते हैं IQR। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम मिनिमम टू 75% ऑफ अ डेटा। 75 मतलब क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, क्योंकि 25 + 25 + 25 which is 75 over here at this point. This is your 75%। ये हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू दैट फिर से हम क्या करेंगे, उसमें से सबट्रैक्ट के क्या करना है, सब वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस वैल्यू 25%, ये वाला परसेंट। ओके, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, तो बचा क्या, ऑब्वियसली you are left with this calculation। ये लाइन बाकी है आपका भी, ये निकल गया तो बचा ये। सो देयर इज फॉर्मूला Q3 - Q1। Q3 is this point, subtracting up to Q1, आपको मिल गया बीच वाला। तो ये होता है आपका IQR। दिस एरिया इज योर IQR वैल्यू। नाउ IQR मतलब क्या है, इस एरिया में दिस IQR वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू, दिस IQR वैल्यू is always in a calculation. Let's say this is what IQR means, where you will not find any outliers। यहाँ पे आपको कोई भी आउटलायर नहीं मिलेंगे, इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, because you will never find any outlier inside that। okay? Now once we have that, हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है IQR का अपर लिमिट, अब हमें क्या करना है, since we have to create a let's say a particular line, a particular limit where if any value crosses, for example मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिमिट बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ऐसे एक, ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, एनी वैल्यू बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू, लेट्स से बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर अपर लिमिट, मैं फॉर एग्जांपल ये अगर अपर लिमिट है यहाँ पे 10 का, 10 के ऊपर अगर मैं किसी को चार्ज करता हूँ विच इज 11 12 13 जो कोई भी है, ये क्या है आपका अपर लिमिट है, ये आपकी जो लाइन है उससे आप ओवर चार्ज कर रहे हो। वैसे ही अगर मैं किसी भी एक नीचे वैल्यू से नीचे कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करके दूंगा तो क्या होगा, लोअर लिमिट, तो उस वैल्यू से मैं नीचे आउटलायर है मेरे वो। आउटलायर मतलब क्या है, दोज वैल्यूज आर नॉट फ्रीक्वेंट एंड दोज आर इंटरफियरिंग विद अवर कैलकुलेशन व्हिच इज इन नॉट गुड वे, इजंट इट, वी नीड टू रिमूव दैट। उसको कहते हैं हम आउटलायर। उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सो पहले तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट डिसाइड करेंगे। अपर लिमिट के लिए कैलकुलेशन के लिए ये मेथड है। तो Q3 से, इस पॉइंट से हम कैलकुलेशन करेंगे हाउ मेनी टाइम्स विद दिस IQR वैल्यू अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ
on a forward direction up to 1.5 times of IQR towards forward direction, I'll create one line like this one. अब इसको वैल्यू के बाद में फॉर एग्जांपल अब इसकी वैल्यू क्या थी वो चेक करते हैं. अभी हमारे पास ये तो आ गया मीडियन है ना, ये वैल्यू तो आ गया. अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है IQR. अब IQR के लिए क्या था यहाँ पे, इज इक्वल IQR उसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1. इसको एक्सेल में कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू जो हमारा डेटा सेट है उसमें से जैसे मैंने कहा था सेम वैसे क्वार्टाइल QUA क्वार्टाइल इंक्लूड ये जो अपना क्वार्टाइल है फेयर प्राइस का, इसको यहां से लेके एंड तक, ओके, कॉमा कितना वाला थर्ड क्वार्टाइल, इसे कर दो एंड, इसे कर दो एंटर, ये आ गया थर्ड क्वार्टाइल. ये Q3 की वैल्यू है. अब ने क्या करना है, Q2 निकालना है, सॉरी Q1 नॉट Q2, Q1 इज इक्वल टू क्वार्टाइल अगेन फेयर प्राइस कॉमा सेकंड क्वार्टाइल, ये सेकंड की वैल्यू. फर्स्ट की चाहिए ना हमें. हेलो, हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट की चाहिए. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, Q1 Q2 Q3. ओके, ये Q2 है अपना मीडियन, ये Q3 Q2. ओके, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है IQR. तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, IQR के लिए I'll apply that same formula, IQR is equal to this minus this 23.089. ये कहाँ पे, ये IQR की वैल्यू है. बेस्ड ऑन दैट वैल्यू अब हम जब अपर लिमिट निकालना है, आई विल से UL अपर लिमिट इज इक्वल टू दिस इनटू ब्रैकेट ओपनिंग कर देता हूं मैं, Q3 1.5 into 1.5, oh sorry 1.5 times of IQR, Q3 plus 1.5 into times of IQR, this one. ये हो गया आपका अपर लिमिट. लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं अगेन, इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 times of IQR. ओके, अगेन लोअर लिमिट रख के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि नेगेटिव में कोई भी गया नहीं है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टोटली, बट वी हैव समथिंग एन अपर लिमिट विच इज 65. ये कहाँ पे देखो अगेन, देखो 65. ओके 65 पॉइंट नहीं है बट ठीक है 65 वैल्यू आया तो 65 पे लिया उसने, तो ये है अपना अपर लिमिट है. तो इस तरह से क्या होता है, आप वहां पे क्रिएट, ये जो डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप क्रिएट हो, ये कैसे क्रिएट हो ये आपको बता रहा हूँ. ओके, सो दिस इट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि IQR क्रिएट करते समय यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आउटलायर आइडेंटिफिकेशन होता है वो IQR के मेथड से होता है. दिस वे इट मींस दैट अपर लिमिट में जो भी वैल्यू जिस किसी ने भी टिकट इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर लिया है, अब यहाँ पे अपना अपर लिमिट क्या बनाए, देखो मैं वो ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे है 65. So any value beyond 65 rupees as a fare is an outlier. 66 किसी ने तो 512 भी दिया ना, एक 512, तो ये तो क्या है भाई, डबल ट्रिपल एनी हाउ दिस इज बियॉन्ड है ना. 6 5 25, 6 5 सॉरी 6 5 30 होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. हाँ है उतना टाइम, 51 65 का कम से कम 6-8 टाइम्स ज्यादा जाता है परसेंट उसमें मल्टीप्लाई में, तब जाके उतना वैल्यू होता है. तो इट्स अ वेरी हाई वैल्यू, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है. ओके, इट्स वेरी एक्सट्रीम वैल्यू. वेरी एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कहाँ पे जाएगा, ये जो आपका लाइन है इस अपर लिमिट से, तो ये बहुत एक्सट्रीम एट द एंड यहाँ पे आएगा. तो इतना जो गैप है, ये डिफरेंस, दिस इज वेरी एक्सट्रीम.
ओके, तो इसको हमने क्या किया है, सस्पेक्टेड आउटलायर है, फिर आउटलायर कंसिडर किया है। या कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा है, पहले वो सॉल्व करते फिर आगे बढ़ते। बोलिए क्वेरी क्या है, क्या है बताइए। सर मेरा कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हो गया था, तो मुझे एक बार वापस से Q3 और Q1 का जो वैल्यू आपने निकाला वो बताइए, मैं कैसे निकाला। ओके सी, Q1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो क्वार्टाइल करके आपके पास में फंक्शन है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डॉट इंक। अच्छा ये भी आपको बता दूं, इंक्लूड और एक्सक्लूड में डिफरेंस क्या है। क्वार्टाइल इंक्लूड में क्या होता है कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू, ओके, उसको इंक्लूड करके दिया जाता है। वेयर एज क्वार्टाइल एक्सक्लूड में क्या होता है कि उसको छोड़ दिया जाता है मिनिमम वैल्यू को। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है ना। तो क्वार्टाइल इंक्लूड ये फंक्शन यूज किया जाएगा। उसके अंदर में आप पहले जो इनपुट देते हो वो होता है आपका एरे, कहाँ पे एरे है। और क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। Q1 मतलब 1 है, Q2 मतलब 2 है, Q3 मतलब 3 है, और Q4 मतलब 4th है, 100% जहाँ पे आएगा। सो आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट क्वार्टाइल, तो Q1। तो क्या देना है आपको, एरे, जो एरे आपका रेंज है, ए से लेके A1 से लेके जो भी आपका A10 20 जो भी आता होगा, फिर कॉमा देके उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, थर्ड देना है, फोर्थ देना है। आपको कौन सा क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है वो देना है, आपको वो Q1 मिल जाएगा। वैसे Q2 और Q3 भी। इज इट क्लियर? यस सर। Okay. Now once we have this value limit over here, अब ये हमारा लिमिट हो गया, मतलब यहां से अगर कोई भी वैल्यू मेरा इस लिमिट से अगर ऊपर कोई भी वैल्यू होता है तो वो मेरे लिए आउटलायर है। मुझे उसको दो तरीके से ट्रीट करना है, एक तो होता है रिमूव और एक तो होता है रिप्लेस। ना रिमूव करने का मतलब क्या है, 65 के ऊपर जितने भी मेरा डेटा, जितना भी रिकॉर्ड होगा सब सब निकाल दो, डिलीट कर दो। हो सकता है ऐसे केस में कि जहाँ पे 100 रिकॉर्ड है उसमें से आपके पास 40 ही बचे, ओके, या 60 ही बचे, या ऐसा हो सकता है कि 20 to 30% आपका वहां पे डिक्रीज हो जाए डायरेक्ट रिकॉर्ड्स। तो ये आपका जब डेटा सेट छोटा हो, जब डेटा सेट हमारे इसमें छोटा ही है, 891 रिकॉर्ड इज नॉट ह्यूज। सो जब डेटा सेट छोटा होता है तो ऐसे समय में 20 और 30% का डेटा लॉस होना इज नॉट लॉजिकल, वी शुड नॉट डू दैट। हाँ, जहाँ पे आपके पास में 10 लाख डेटा है, 10 लाख डेटा है, हाँ, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 1000 रिकॉर्ड भी चले गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उतना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी, और लेट्स से हाउ मच लार्ज डेटा सेट वी हैव, देन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट रिमूव रिप्लेस। बड़ा डेटा सेट है रिमूव करो, छोटा डेटा सेट है मेक श्योर टू अंडरस्टैंड टू रिप्लेस इट। ये एक हो गया। दूसरा, जब बहुत, अभी आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर आउटलायर, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 65 कहा और 512 कहा, अब ये देखा जाए तो ये ऑब्वियसली आउटलायर ही है, हम इसे क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, इसे रिमूव क्यों नहीं कर रहे। यस, जब आपको एब्सोल्युटली पता है कि ये आउटलायर ही है, इसे निकाले तो रिमूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसे केस में जहाँ 65 आपका अपर लिमिट है और आपकी वैल्यू यहाँ पे 67 है, 68 है, 70 है, 90 है, 100, और 100 का रिपीटेशन कितना है, अगर एक ही 100 आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो ना। ओके, ऐसे केस में हाँ, 200 है, 300 है, ये ऐसे आ रहा है तो उसको रिमूव करो, नो प्रॉब्लम। सो इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन योर अपर लिमिट लोअर लिमिट तो ऑब्वियसली उसे रिमूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कब होता है, जब आप IQR यूज कर रहे होते हो ना। IQR में क्या होता है, आपका जो रेंज है ना, वो IQR वैल्यू का मिनिमम 1.5, आउटलायर का जो कैलकुलेशन होता है IQR का, उसका कैलकुलेशन 1.5 से लेके आप 3 वैल्यू तक जा सकते हो। 1.5 से लेके 3 तक आप एक्सीड, मतलब इसका जो लेवल है ये, कि यहाँ से यहाँ 3 वैल्यू तक, जहां तक आएगा यहाँ तक, वहां तक आप इंक्रीज कर सकते हो 3 तक। मतलब जहाँ पे हम मैथ में यूज कर रहे हैं ये 1.5, इसको आप 3 यूज कर सकते हो, 1.5, 1.7, 2.7, 3.3, 2.9, 2.8, ऐसे करके 1.5 से लेके 3 के बीच में जो भी नंबर चाहिए आपको कर सकते हो, बट 3 तक किसने कहा है, ये स्टैटिस्टिशियन ने कहा है। उन्होंने 1000 बार इटरेट करके देखा, उसमें पता चला है कि 1.5 और 3 के बीच में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। सो वी आर फॉलोइंग दैट। सो ये आपका रेंज है। तो अगर 1.5 यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि जितना भी एक्सट्रीम वैल्यू होता है उसको रिप्लेस करो, बिकॉज दोज आर सस्पेक्टेड आउटलायर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 65 क्या हो सकता है, 67 हो, आगे 68 हो, 70 हो, 90 हो, 100 हो, ओके, 200 भी हो, तो एक ही बार आया होगा तो उसे हम कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आप ट्रेन से जा रहे हो, तात्काल में जाना क्या गुनाह है, नहीं, तो आपको ज्यादा पैसे देना पड़ता है। आउटलायर हो आप, लेकिन आप तो लीगल है ना, कोई इशू नहीं है, कुछ रीजन की वजह से, तो यस,
उसे हम आउटलायर कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसे रिप्लेस करेंगे, हम उसे ट्रीट करेंगे। ओके, लाइक दैट। हाँ, बट अगर आपके पास 3 ऑलरेडी है, हाँ, अगर 1.5 की जगह आपने 3 ऑलरेडी रखा है और 3 आने के बाद 65 आता है और उसके ऊपर भी अगर 512 से, तो फिर रिमूव कर दो, उसे सोचो मत, डायरेक्टली रिमूव करो। सो एनी वैल्यू where you have calculated IQR with 1.5, and if there is any value beyond that, make sure you try replacing method. Any value where you have used 3 as an IQR, and if you are getting there exceeding that upper limit, make sure you remove it. तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको रिमूव और रिप्लेस के बारे में जानना है कि कौन सा कहां पे यूज करना है। Am I clear with this? यस सर। Now you also understood। हाँ बोलो। सर मुझे आपको फिर में करना क्योंकि मुझे मैं समझ नहीं आ रहा। किस चीज का? आपने जो अभी दिया ना, आपने जो भी दिया ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट करो। क्या नहीं समझ में आया? कौन सा मीन्स पॉइंट? आपने IQR वगैरह एंड ये ग्राफ वगैरह आपने दिया एंड हाँ, आपने जो वैल्यू वगैरह तो वो नहीं समझ में आया। ये तो पूरा सेशन उसमें चले जाएगा। एक काम करिए, आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो रिव्यू चेक कर लिए, देख लीजिए, रिकॉर्ड हो ही रहा है वैसे, और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है पर्टिकुलर पॉइंट मुझे बताइए, देन आई विल अपडेट यू। ओके ओके। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अभी आपकी कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये आपको पाइथन में भी, माई सीक्वल में भी ये काम आने वाला है, टू फाइंड आउटलायर्स। आउटलायर निकालने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे कोई लिखा नहीं कि बस आउटलायर लिख दिया मैंने और फंक्शन में मुझे आउटलायर पता चल गया। नो, यू हैव टू गो थ्रू दिस कैलकुलेशंस ओनली, दिस और गॉसियन। अब आईक्यूआर और डिफरेंस क्या है? गॉसियन में, आईक्यूआर में 1.5 टाइम्स आईक्यूआर लिया जाता है, गॉसियन में 3 टाइम्स ऑफ आईक्यूआर लिए जाते हैं। गॉसियन में 3 टाइम्स ऑफ आईक्यूआर और आईक्यूआर में 1.5 टाइम्स ऑफ आईक्यूआर कैलकुलेशन किया जाता है आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब क्या है, जहां पे आईक्यूआर में आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ इस तरह से आएगा मीडियन से, तो गॉसियन में क्या होगा, इट विल हैव एक्सटेंडेड, ये थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, ये थोड़ा ऐसे आगे जाएगा। ओके, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। So if outliers are there in between, let's say, if outliers are there present in this area and in this area, so as I said, it's better you replace it, because ये क्या है, 1.5 times of IQR है, whereas this is 3 times of IQR. Anything beyond this, anything beyond this, there's no necessity for keeping it. इसको आप क्या करना है, रिमूव ही करना है। In this way we have to remove, in this way we have to replace, we replace and we remove. तो कौन सा लॉजिक कहाँ पे यूज करना है, इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अब बात आती है क्वांटाइल की, तो जो दूसरा एक रहेगा था क्वांटाइल, उसका कैसे करते हैं? वी डू रिमूव 0.05 परसेंटेज, 0.05 परसेंटेज ऑफ स्टार्टिंग एंड 0.05 परसेंटेज ऑफ एंड डेटा। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से 0.05 और एंड से 95% तक का ही डेटा हम लेते हैं। मतलब 90% डेटा ही हम लेते यूज करते हैं पूरे डेटा सेट में से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सॉर्टिंग में। स्टार्टिंग का 5% निगलेक्ट कर देते हैं और एंड के 5% निकाल देते हैं, तो बचा क्या, 90%, जिसमें कि आउटलायर रहने के चांसेस नहीं होते। ये होता है क्वांटाइल, ये होता है क्वांटाइल मेथड। Okay, so remember that these are 3 methods of removing outliers in your from your data set. Is it clear? हॅलो बोला। सर ते सेकंड ते तुम्ही सांगितलं ना आता ते जो आपने बताया सर अभी वो थोड़ा आगे जाएगा उससे मतलब इससे IQR से आगे जाएगा वो बताइए ना एक बार। ओके देखो, जब हम यूज करते हैं IQR सिर्फ मेथड, सिर्फ IQR मेथड, जिसमें होता है 1.5 टाइम्स ऑफ IQR कैलकुलेशंस, मतलब आप जो लिमिट्स क्रिएट करते हो ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसमें क्या यूज किया जाता है, 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, वो कि Q3 के आगे जाए या Q1 से पीछे आए। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए कितना लेते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। Whereas जब हम गॉसियन यूज करते हैं, गॉसियन मेथड टू आइडेंटिफाई IQR, उस समय क्या होता है, आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड होता है 3 टाइम्स ऑफ IQR। ओके,
तो होता क्या है, नॉर्मली जब IQR का कैलकुलेशन करोगे तो लिमिट ऐसा होगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, और उसमें कैसा होगा आपका, ये मीडियन वैल्यू है। तो मीडियन से IQR क्या करेगा, एक लिमिट ऐसे क्रिएट करेगा। ये कौन सा मेथड है, IQR। क्यों 1.5, क्योंकि अगर आपका IQR यहाँ पे है तो कितना हुआ, 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट, 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बट यही चीज अगर आप गॉसियन से करोगे तो एक्सटेंड हो गया ना वो 3 टाइम्स, मतलब 3 फोल्ड, 3 टाइम्स। सो यहाँ इस पॉइंट से 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू, यहाँ से भी 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू। पहले कहाँ था आपका, यहाँ से, ये पॉइंट से यहाँ पे था, ये पॉइंट से यहाँ पे था, इसलिए कम था डिस्टेंस। लेकिन अभी क्या हो गया आपका, 3 टाइम्स, मतलब उससे डबल हो गया ना। सो दैट इज गॉसियन। इज इट क्लियर? हाँ सर, यस क्लियर। हेलो बोलो। सर, ये आउटलायर का एप्लीकेशन क्या है? मतलब और क्या क्या एप्लीकेशन है रिमूविंग के अलावा? आपके डेटा सेट में कभी भी आप मुझे बताइए, अगर आपके डेटा सेट में आपको आ, लोगों को बताना है ऑन अ फर्स्ट ग्लांस कि बिजनेस जो चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, तो आप क्या करते हो, मीन निकालते हो ना, है ना, रेफरेंस के लिए। यस। ओके, तो ये आपका बिजनेस है, आपने क्या कहा कि भाई चलो ये एक मीन लाइन निकाल लेता हूँ मैं। तो आपका डेटा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट आ रहा है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट है। ये आपका मीन है विथ रेफरेंस टू मीन। आपने क्या किया, विथ रेफरेंस टू योर मीन वैल्यू, आपकी कुछ वैल्यू पे प्लॉट किया, आपने बता दिया। अभी आपको ऑब्जर्व कर सकते हो, देर आर फ्यू वैल्यूज विच आर बिलो एवरेज, बट देर आर वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर अबव एवरेज, which means our company is not performing at the peak or let's say at the best, but there are some products which are performing in very good way because it's not near the average but it is above your, let's say, ये आपका अपर लिमिट है, ये आपने क्रिएट किया, ये लोअर लिमिट है, लेट्स से लोअर लिमिट यहाँ पे। So you can say that there is none of a product which is falling below or let's say close to lower limit, but there are most of the product which are outperforming above upper limit। ये आपका यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। अब ये किसके रिस्पॉन्स में दिख रहा है आपको, यहाँ पे म्यू के रिलेंस में, म्यू के एवरेज के। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन आपने क्या किया है, म्यू यूज किया है फॉर द कैलकुलेशन। तो आपको क्या लगता है, ये जो आपका एनालिसिस किया है, ये क्या ये सही है या गलत है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? हम्म ये आपने जो एनालिसिस तो किया है, जो मैंने बताया है, ये सही है गलत है, कैसे आप चेक करोगे, क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करोगे इसे? शायद आउटलायर की हेल्प से। आउटलायर की हेल्प से? नहीं, आप यहाँ पे क्या मैंने करोगे, डिजाइन। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो वैल्यूज है जो पॉइंट हुए, ये वहीं पे रहेंगे ग्राफ में, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है आपके इसमें, सिर्फ एक ही वैल्यू है, जो म्यू मैंने जिसका बेस लिया है चेक करने के लिए, वो बेस कितना सही है वो चेक करना है, एक ही यहाँ पे यही ऑप्शन है, बाकी थोड़ी है। तो यही ऑप्शन आपके पास में है। आप क्या करोगे, इस म्यू को चेक करोगे, किससे चेक करोगे, यू विल वेरीफाई दैट इन योर डेटा सेट इफ दिस वैल्यू इज देयर, म्यू, the line that we are calculating over here as a representation or it's a baseline, is it okay, or is it, let's say, going to change, or it should be used with other method, mu की जगह median होना चाहिए था, ये mode होना चाहिए। ये आप क्या करते हो, क्रॉस वेरीफाई करते हो। बाकी क्या करोगे आप, ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है, these are already recorded, you cannot change, this is value that we have created, so you are going to check this। To check this we always compare it with median and median। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कभी भी मीन मीडियन मोड एक स्ट्रेट लाइन में आता है, मीन मीडियन मोड। ओके, मतलब क्या है, अगर आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कहीं पे भी आउटलायर नहीं है तो यू शुड फॉलो जीरो, एवरीथिंग शुड बी जीरो, इट शुड। बट इन real life scenario this is standardized, which is an ideal scenario, but in real life this doesn't happen, more would be there, but that means that mean and median will always follow in a straight line if there is no outlier। इज दिस सच अ सिनेरियो, ये आप क्या करते हो, कंफर्म करते हो, आप कंपेयर करते हो मीडियन से। अगर मीडियन और मीन की वैल्यू सेम है तो देयर इज नो आउटलायर, सेम है या क्लोजेस्ट टू ईच अदर है, देयर इज नो आउटलायर। बट इफ इट्स a huge difference then there's an outlier, so whatever analysis you have done over here
which was based on mu is wrong analysis. Is it clear? Yes, sir. Not only with this, आपके जितने भी कैलकुलेशन है, वेरिएंस कैलकुलेशन, क्या फॉर्मूला है? xi माइनस म्यू, उसका स्क्वायर करते हो, फिर क्या करते हो? n नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, उसका वैल्यू लेते हो, समीशन ऑफ, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर से आप क्या करते हो? आप स्क्यूनेस निकालते हो, xi माइनस एक्स क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन क्यूब n इंटू, ओके, उसका क्यूब। ये भी क्या है? यहाँ पे भी आपका ये जो x है ये म्यू है, दिस इज म्यू, यहाँ पे भी म्यू यूज होता है, यहाँ पे भी म्यू यूज होता है। अगेन आपके स्केलिंग में भी देखा होगा आपने, xi माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन केस में xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला है, उसमें भी म्यू यूज होता है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज में आप जहाँ कहीं भी आप देखोगे तो वहाँ पे म्यू एज अ रेफरेंस लिया जाता है। तो जहां जहां पे भी आप यूज करोगे तो वहां वहां का हर एक जगह का वैल्यू गलत होगा। टू अवॉइड दैट वी नीड टू एनालाइज कि डेटा should not contain any outlier. To identify, this is the best option that you have. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now I think ये आपको पता चल गया अभी कैलकुलेशन कैसे किया है, because this is not required by any means. Okay. तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन। ना इसको अगर आपको अभी रिमूव करना है, फिर इसको अभी हमें चेक करना है ना कि हमें लेट्स से कि हम इसे रिप्लेस करते हैं जो भी वैल्यू है एक अपर लिमिट की जगह, जैसे क्या अभी यहाँ पे जितने भी वैल्यू 65 से अपर है, ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे 65 से। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, आई जस्ट पुट इट ओवर हियर असाइड एंड आई कॉपी दिस सेल array over here like this. Once copied, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, if over here, या उससे अच्छा कॉपी करने के बजाय ऐसे कोई जरूरत तो नहीं था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऐसे इज इक्वल टू if in this cell, ऐसे क्या लिख के आ रही है, if in this cell any value greater than or equal to 65 कर लेते हैं, कॉमा 65 कॉमा 0 तो कोई नहीं रहेगा, और एल्स जो भी वैल्यू उसको ऐसे रहने दो। ओके, नाउ लेट अस सी, यस, सी हमने क्या लिखा यहाँ पे, व्हाट वी हैव डन इज दैट इफ in this cell if you found any value which is greater than 65, मैंने एक राउंड फिगर लिया, 65 से कुछ भी ऊपर मिलता है तो उसे क्या करो, आप 65 पे चेंज कर दो। तो 71 है या 65 से ऊपर, तो 65 में चेंज कर दिया। अदरवाइज अगर कोई भी वैल्यू उससे छोटी है तो उसे कुछ मत करो, है ना, उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव में जाने से रहा, कोई भी नेगेटिव देखे, उधारी देखे तो कोई नहीं लेगा कि आप अभी आओ, या फिर आपके मैं खाते में लिख देता हूँ 10 साल बाद दे देना, ऐसे करके तो यहाँ पे नहीं आएगा फेयर में। सो देयर इज नो वन एज अ नेगेटिव वैल्यू। सो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है पॉजिटिव है, और जो भी वैल्यूज यहाँ पे 65 के ऊपर है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है 65 से। सो एक 71 करके मिला है, देन 31 146 करके देखो यहाँ पे, ये भी हमने रिप्लेस किया है। ओके, अब हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, फेयर, न्यू फेयर है, न्यू फेयर, वेट, फेयर, copy this one, insert the data with respect to recommendation with all charts, go with discuss, see, now the difference is clear, new fair, we don't have any outlier here, we don't have, or we don't seem to have any outlier for our analysis in this case. Is that clear, guys? Yes, sir. This is one of the way Yes, to sir. remove outlier in your data set, which in new fair we have removed.
and then we will do the analysis purpose. Again, it depends totally on how you are calculating, because if you'll see over here at the previous chart, let me update with you this. If you'll see over here with the previous chart, you will find that any value up to here, any value which is up to here, okay, say this. I would recommend कि भाई इसको आप ना जरूर रिप्लेस करो, बट ये वैल्यू को रिप्लेस मत इसे रिमूव करो. दैट इज अ रिकमेंडेशन, दैट इज आई वुड से ऑल्सो, और कोई भी एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दिस पर्सन ओवर हियर at this over here has paid up to 500 rupees, but I don't know why he has paid, isn't it? This is really an outlier value. बाकी ये सब जो चीजें हैं, हो सकता है कि शायद उन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के हिसाब से भरा होगा, बट ये किसी क्लास में बिलोंग नहीं करता है. इट इज रियली वेरी एक्सट्रीम वैल्यू. इट्स बेटर वी रिमूव इट. जैसे हमको कहा है, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हियर एज वी हैव सीन कि थर्ड क्लास के जो या फिर जो थर्ड क्लास के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है काउंट में, तो ये थर्ड क्लास के होंगे. हो सकता है ये सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के होंगे जिनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा है, ठीक है. बट ये जो वैल्यू है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इट्स वी शुड रिमूव इट. तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर आप 1.3 टाइम्स, सॉरी 1.5 की जगह 3 टाइम्स ऑफ लोगे, तो माइट बी जो आपका विस्कर यहाँ पे आया है, विस्कर कितने 65 पे है ना, हो सकता है कि माइट बी शायद वो 300 पे आए कहीं, या हो सकता है कि शायद 250 पे कहीं आए. तो ऐसे केस में क्या है कि आप आगे वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो और बाकी को रख सकते हो, तो थोड़ा सा और आपका वैल्यू प्रिसिशन में अच्छे से आएगा आउटलायर के साथ में. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Fine. So this is how we can use this outlier method, which is box, इसे कहते हैं बॉक्स प्लॉट. ओके, तो ये IQR का आपको पूरा यहाँ पे मैंने डिटेल दिया है, इसमें कि आप रेक्टिफिकेशन, रिटेन और रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं. रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है, जैसे आपको कभी भी अगर कोई आउटलायर दिखता है तो आप उसे कंफर्म कीजिए. जैसे किसी का सैलरी नॉर्मली आपके एनालिसिस में आपने हर बार देखा है कि किसी को 10,000 रुपये आपके अगर उस एनालिसिस में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ITI करके बंदा है, ओके, और अभी इंटर्नशिप कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पे इंटर्नशिप में उसको 10,000 मिल रहा होगा. तो ITI करते समय जो वो 10,000 ले रहा है और नॉर्मल आपकी कंपनी में इतना देता है, आपको पता है. किसी ने गलती से अगर 1 लाख कर दिया, जीरो गलती से दब गया होगा, गलती से एंट्री हो गया होगा उस टाइम के लिए, तो ये जो गलती आया है, आपको पता है, you have the knowledge that this value doesn't it haven't been paid this value by any means, or it should not be paid, there is something issue. तो आप क्या करो, आप कंफर्म करो कि ये जीरो है, गलती है, क्या है, उसे रेक्टिफाई कहते हैं. उसे निकाल दो, प्रॉपर कर दो. ओके, दिस इज रेक्टिफाई. रिटेन मतलब क्या है, नाउ इवन दो इट्स 1 लाख, मुझे पता है नॉर्मली कि 10,000 होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे रिप्लेस कर दूंगा और उसे 10,000 कर दूंगा. ये होता है रिटेन. आई हैवंट रिमूव्ड, बट मैंने उसे रिप्लेस कर दिया, रिटेन कर दिया. रिटेन इज नथिंग बट रिप्लेस. रिमूव क्या है, रिमूव को आपने क्या है, भाई ये कुछ तो भी गलत दिख रहा है, डायरेक्टली निकाल दो, मतलब आप पूरा रिकॉर्ड निकाल दे रहे हो. Okay, so in this way you can have 3 options over here. With reference to this option, you have again calculation, which is IQR Q3 minus Q1, lower limit for this and upper limit to this. So viscous मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है लंबी ऐसे, ही इस पॉइंट से Q1 से पीछे लाइन और Q3 से आगे लाइन, these are called viscous. इसलिए इसको viscous plot भी कहते हैं कभी कभी. ओके, so it has an synonym name, anonymous, दूसरा एक नाम भी जिसको हम कॉल आउट करते हैं. ओके, नाउ डिस्क्रिटाइजेशन एक दूसरा मेथड है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी कॉलम को अगर मुझे उसे कैटेगराइज, जैसे न्यूमेरिकल डेटा है, इस न्यूमेरिकल डेटा को मुझे कैटेगराइज करना है तो मुझे डिस्क्रिटाइज करना होगा. और नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी नंबर को और किसी कंटिन्यूस डेटा के ऊपर हम इसे फिक्सेट करते हैं. अच्छा, कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये जो न्यू फेयर है इस कॉलम का, ये जो न्यू फेयर कॉलम है, मुझे इसको ऐसे चेक करना है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोग हैं जिनको इतना ही अमाउंट, मतलब इतना 60 कितना था हमारा, 14 समथिंग था ना मीडियन वैल्यू. हाँ, तो 14 रुपीज तक के नीचे जो भी जितने लोग दिए हैं वो एक अलग कैटेगरी के हैं, और यहाँ तक की कैटेगरी के कुछ अलग हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम है, तो ये कैटेगरी के अलग है. ऐसे तो ऐसे 3 कैटेगरी दिखता है आपको. तो हम क्या करेंगे, लेट्स से वी विल क्रिएट अ 3 कैटेगरी फॉर द न्यू फेयर अमाउंट. लेट्स से लो, मॉडरेट और लेट्स से क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो ऑलरेडी आपकी इसमें है. मुझे वापस से वो रिक्रिएट करना है, मुझे चेक करना है कि कितने लोगों के कितना काउंट है. ओके, तो एक मेथड क्या है, अगेन
I'll go over here. एक तो मेथड मेरे पास में है इस क्लास के हिसाब से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काउंट करता हूँ। ओके, लेट्स से ओके मुझे यहाँ से थर्ड क्लास का देखो, पी क्लास जो है ना, पी क्लास सी जो कॉलम में है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लोगों के वहां पे है। ओके, थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास, तो मुझे बताया कि कैसे कैलकुलेट काउंट कैसे लूंगा मैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का। क्लास 1 बताइए। यस गाइस, बोलिए। काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। सांगा काउंट इफ ओके, I'll get over here is equal to count if और फिर पूरा रेंज देंगे सर, क्लास पी क्लास एंड इज इक्वल टू 3 अगर थर्ड क्लास का फाइंड आउट करना है तो। ओके यहाँ पे है, करेक्ट है। यस देखो सर, यहाँ पे लिखा है मैंने, इज इक्वल टू की जगह कॉमा 3 देना पड़ेगा ना। कॉमा, क्योंकि आपको रेंज देने के बाद में क्राइटेरिया डिफाइन करना है ना, तो इंस्टेड ऑफ इज इक्वल टू इट्स बेटर यू गिव कॉमा, ताकि आप नेक्स्ट को कंप्लीट कर सको। ओके, सो वी हैव 491। ओके, अगेन फिर से हम क्या करेंगे, अगेन लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, कंट्रोल डी कर दो, यहाँ पे सिर्फ आके क्या कर दो, वहाँ पे 2 कर दो। सॉरी शायद अपना गलत हो गया, नहीं ये यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए था। हाँ, और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देंगे। ओके, अगेन बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स आपको क्या करना है, सिर्फ चार्ट बनाना है, इंसर्ट पे आना है, यहाँ पे आना है, हिस्टोग्राम में सॉरी बार चार्ट करना है, ये वैल्यू देता है, ये वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना काउंट मिला है, देखो द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन क्लास 1 आर 216, total number of in class 2 are 184 and this is 491। ये आपके वैल्यूज है। ओके, अब जो इसे हमने कहा था हम खुद क्रिएट करेंगे इस क्लासेस को। ओके, लेट अस वेरीफाई, ये अपना वेरिफिकेशन के लिए चार्ट है, कैलकुलेशन चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी खुद बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन, वेयर वी विल ट्रांसफर इट टू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में हमने कैसे कहा था, मीडियन और मीडियन से नीचे वैल्यूज को फर्स्ट क्लास, उसके अबव में जो ये वैल्यू है, कितना वैल्यू देखो यहाँ पे 164। ओके 164 यहाँ पे देता हूँ मैं, लो जिस बिलो 14 15 कर देते हैं इसे 15, मॉडरेट 165 के नीचे, और उसके ऊपर जो भी रहेगा हाई, अप टू जितना भी है मैक्स। अब हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे न्यू क्लास इज इक्वल टू इफ पेयर is let's say less than or equal to नहीं करते, less than नहीं करते 15, I'll say it, let's say low, if else part में if करना start, if again with this reference with same cell, if it is let's say greater than or equal to 65 लिया था ना मैंने, 165 इक्वल टू उसके साथ लिया क्या, ठीक है इक्वल टू छोटे, देन आई विल से हाई, और उसके नीचे रहेगा तो मॉडरेट। ये हो गया आपका डेटा। अब देखते हैं क्लास में क्या यही हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू काउंट इफ in this cell is equal in this cell
रेंज है भाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से सकते बस। कॉमा लो कितना है चेक करते हैं पहले। 457 आया है। तीनों को ले लेते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं लो की जगह फिर अभी हाई। हाई भी नहीं है। ओके। अच्छा हमने इसमें चेक किया ना, हाँ 1065 क्या कोई भी नहीं था ना। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मॉडरेट, ठीक है। सो टोटल आप देखोगे तो 297 डेटा, ठीक है। 297 देखो, यहाँ पे भी 297 है, यहाँ पे भी 297 है एवरेज। सो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज भी क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सम 891 है, 891 सम है, तो वो भी सही है, मतलब वैल्यू में कोई गलत नहीं है। सिंस we remove the outliers, so there is zero outliers, there is zero value which is beyond 65, but yes उसके पहले है जो दो क्लासेस में आपकी डिवाइड हो जाते हैं। ओके तो इस तरह से आपको क्या है, अगर डेटा को डिस्क्रिटाइज करना है, मुझे न्यूमेरिकल कॉलम या फिर किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगरी में करना है, तो वी कैन यूज दिस डिस्क्रिटाइजेशन मेथड। स्विच भी एक मेथड है, स्विच भी यूज कर सकते हो, स्विच का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन यूज दैट ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मुझे इस कॉलम को क्लास में डिवाइड करना है, लो और इसमें, ओके लेट्स से P1 P2 ऐसे करना है मुझे। न्यू क्लास बाय P, ठीक ऐसे कर देते हैं, अभी कुछ भी नाम दे रहा हूं मैं उसे। इज इक्वल टू स्विच फंक्शन, एक्सप्रेशन यहाँ पे है, कॉमा क्या मिला तो लेट्स से लो मिला तो क्या करना है, लो मिला तो आपको देना है P2, क्योंकि P2 अभी दो ही क्लास है, सो P2। और अगर हाई मिला तो सॉरी इसको टेक्स्ट में देना रहेगा ना, P2। मॉडरेट है क्या इसमें, अरे मॉडरेट कैसे आ गया, अच्छा मॉडरेट ही है, हाई नहीं है, सॉरी सॉरी। मॉडरेट अगर मिलता है तो उसे P2 कहना है, P1 है एक्स्ट्रा। ओके जहाँ पे मॉडरेट है वो, जहाँ पे लो है वो, तो इस तरह से आप कैटेगोरिकल को भी कन्वर्जन कर सकते हैं शॉर्ट में अगर करना है वगैरह। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि हमें किस चीज को शॉर्ट में करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलम में, जैसे अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट किसी कॉलम में अगर आपको ऐसा लगा डेटा सेट में, फॉर एग्जांपल पकड़ लो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी करके लिखा है, TECHNOLOG, इतना लंबा चौड़ा स्पेलिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स करके लंबा स्पेलिंग है, फिर होम ऑफिस, ऐसे मतलब लंबे लंबे आपके स्पेलिंग है। आपको इसको शॉर्ट में करना है, लेट्स से TECH, इलेक्ट्रॉनिक्स को ELT, ओके ELT, होम ऑफिस को HOF ऐसे कर देना सिर्फ। तो ऐसे शॉर्टकट करते समय आपको बार बार ईफ करना पड़ेगा, ईफ के अंदर एक और ईफ करना पड़ेगा, 3 के लिए 4 होगा तो 4 ऐसे ना 2 बार। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ईफ एंड ईफ अगेन इनसाइड ईफ, आप स्विच यूज कर सकते हो, जहां पे आपको पहले सेल देना है, कहाँ पे ढूंढना है फर्स्ट, उसके बाद में इसके अंदर क्या मिलेगा, तो सो फर्स्ट गिव द एक्सप्रेशन यू वांट, कि इफ दैट इज अवेलेबल व्हाट शुड बी डन, क्या करना है, ऐसे आपको बस कॉमा कॉमा देते हुए आगे बढ़ते जाना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। Okay. अगर सर एक्सेल हम्म। 2000 जैसे 2013 है तो उसमें स्विच केस नहीं यूज होता, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन। तो इफी जाना पड़ेगा भाई, फिर वी डोंट हैव एनी अदर हाँ। ऑप्शन। ये देखो ओके। सही बात है आपका, जैसे कहीं कहीं जगह पे ना कुछ है जो फंक्शन, जैसे एक्स लुकअप वगैरह है ना हमारे इसमें, तो कुछ फंक्शंस है जो 2013 है उसके पहले के या 10 के इसमें नहीं है। सो उसके लिए जैसे अभी हमने उस दिन देखा था लुकअप्स के रेफरेंसेस में, क्यों क्यों हमने इसे इंडेक्स मैच को सीखा, दैट इज द रीजन ओनली। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस है जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट उसके अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं। ओके एम आई यस क्लियर सर। गाइस? या यस सर। थैंक यू। यस सर।
सो दिस वाज रिगार्डिंग डिस्क्रिटाइजेशन। एनकोडिंग में भी एक दूसरा मेथड है जहाँ पे आप कैटेगोरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं, दैट डिटेल आल्सो सी। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपका ये कुछ ऐसे डिटेल्स है, आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है लो और मॉडरेट करके। ओके, आपको ये जानना है कि डेटा सेट में जो पहला रिकॉर्ड है वो लो वाला है, मॉडरेट वाला है, कैसा वाला है। तो आपने क्या कहा कि मेरे इस डेटा सेट में, आपके डेटा सेट में ये जो कैटेगोरिकल डेटा है, अब इनका तो मैं काउंट नहीं, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, यहाँ पे इजंट इट, मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि भाई लो का सम क्या है, मॉडरेट का सम क्या है, फिर मैं नहीं कर सकता क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव टू कन्वर्ट बाय सम मीन्स, किसी ना किसी तरीके से मुझे कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। जैसे प्रेजेंस है लो तो 1 कर दो, मॉडरेट है तो 2 करो, लाइक दैट, तभी जाके कैलकुलेशन कर पाऊंगा। और उसमें भी क्या है, अगर लो को मैं कर देता हूँ 1 और मॉडरेट को कर देता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सम अप। जैसे लो की जगह में सब 1 1 1 1 आएगा, लेकिन मॉडरेट की जगह 2 2 2 आएगा, तो आप सम नहीं कर पाओगे। क्यों, सम करने के बावजूद भी क्या होगा, 2 + 2 + 2 तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, जो कि उसका रिलेशन यहाँ पे कोई नहीं बनता। हाँ, जहां जहां 1 है वहां पे तो चलो आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि एज एन काउंट इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा, बट इसका काउंट नहीं मिल पाएगा। तो एग्रीगेट कैलकुलेशंस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनकोडिंग मेथड यूज किया जाता है। और एनकोडिंग मेथड बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि मशीन को आप सिखा सको। आप मशीन को कुछ लर्न करना चाहते हैं, मशीन एल्गोरिथम में, एमएल में ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे आप मशीन को सिखाते हो कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर लेट्स से मेल और फीमेल के फीचर्स है कुछ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो नया एंट्री हम देंगे, एक न्यू एंट्री, ओके, एक न्यू इनपुट जो देंगे, ये मेल है फीमेल, आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन सम फीचर्स। हेयर फीचर हो सकता है, स्किन का फीचर हो सकता है, बोन डेंसिटी होगा, वेट होगा, हाइट होगा, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे फीमेल के और मेल के भी। बेस्ड ऑन दोज आप क्या करते हो, मशीन को सिखाते हो कि अगर कुछ इस तरह का आपको इनपुट आता है तो वो मेल है, और कुछ इस तरह का इनपुट आता है तो डिफरेंशिएट विद फीमेल। ये आपको अपने मशीन को सिखाना है। अब उसके लिए आपको कितना होगा, कम से कम 1000 या लाख ऑफ रिकॉर्ड, 10,000 ऑफ या 1 लाख रिकॉर्ड देने होंगे ताकि वो समझ सके। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है ये सब होना चाहिए, हाइट वगैरह सभी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल है ना। तो आउटपुट, या फिर इसको समझने के लिए मशीन को मेल फीमेल नहीं समझता मशीन, मेल है या फीमेल है मशीन नहीं समझता, एबीसी नहीं समझता। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें कि अगर ये इनपुट इस तरह से आता है तो मैं क्या करूंगा, मेल को 1 कंसिडर करूंगा, और ये अगर सब आता है तो फीमेल को 0। तो मतलब पहला रिकॉर्ड आता है तो मेल, दूसरा आता है तो 0, ऐसे कितने आते हैं वो सीखता जाएगा, बिकॉज मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज इज 0 and 1। तो मशीन को सिखाने के लिए बेस्ड ऑन द इनपुट वी ऑलवेज रिलाई ऑन दिस एनकोडिंग मेथड विच इज वन हॉट एनकोडिंग। ओके, तो वन हॉट एनकोडिंग का मेथड क्या है, कन्वर्टिंग ऑफ कैटेगोरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल, ये एनकोडिंग। वेराइज जो हमने डिस्क्रिटाइजेशन किया था वो क्या किया था, हमने न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल में कर रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और कैटेगराइजिंग मतलब क्या, अब एज कॉलम है, इस एज कॉलम को आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस एज कॉलम में मुझे जानना है कि सबसे फ्रीक्वेंट एज वाले लोग अपने डेटा सेट में कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी मिनिमम वैल्यू है लेट्स से 1 ईयर से लेके जो मैक्सिमम 80 ईयर्स तक, आप क्या करोगे, इसमें ग्रुप बना दोगे, इसमें बिन्स बनाओगे। लेट्स से 1 से लेके 10 का ना, जिसको हम कर देते हैं चिल्ड्रन, 10 से लेके 20 तक कर देते हैं टीन, फिर क्या करते हैं 30 से लेके 40, जो कोई भी, आप ऐसे ग्रुप बनाते जाओगे। और फिर देखोगे क्यों ऐसे 1 से 10 टीन, ए चिल्ड्रन, तो जो भी इसके रेंज में बैठता जाएगा आप क्या करोगे, उसे उसके पर्टिकुलर सामने वो वैल्यू आता जाएगा। तो आप क्या करोगे, समझोगे अच्छा तो इनका काउंट कितना है, टीन का, इसका काउंट क्या है, काउंट के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि सबसे फ्रीक्वेंट क्या है, मॉडरेट। तो आपने क्या किया, एक न्यूमेरिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसे कैटेगराइज किया, वो होता है डिस्क्रिटाइजेशन। और एक कैटेगोरिकल डेटा जो ऑलरेडी है उसको समझने के लिए मशीन के लिए आपने क्या किया, उसे कन्वर्ट बाइनरी में किया, उसे कहते हैं एनकोडिंग मेथड। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो अचीव कैसे होता है ये, टू अचीव दैट उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे नाउ, उसके लिए 2 मेथड है, एक होता है वन हॉट एनकोडिंग, एक होता है आपका लेबल एनकोडिंग। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ओके, लेट मी फर्स्ट अब लेट्स से अप्लाई दिस ऑन लो एंड मॉडरेट। ये जो लॉजिकल यहाँ पे P1 P2 भी कर सकते हैं, नो इशू, पर इसमें करता हूँ मैं लो और मॉडरेट पे। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये तो भी जरूरत नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपके पास में ये कॉलम है जिसमें कि आपके पास क्या है, लो और मॉडरेट ऐसे 2 इनपुट है, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं अभी, लेकिन 2 है फॉर एग्जांपल। तो टोटल पहले इस कॉलम से आप क्या करोगे, यूनिक जो इनपुट्स है, यूनिक इनपुट्स वो निकालोगे, टोटल कितने, 2 यूनिक इनपुट्स है,
उसमें है आपका लो और मॉडरेट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है? MNOP की बार देखोगे तो एल आता है, फिर एम आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लो पहला आता है, एम बाद में आता है। तो पहले का कॉलम बनेगा एल का बनेगा और फिर एम का बनेगा, इज लो और मॉडरेट। ओके, तो पहले आपने क्या किया? पहले कितने भी यूनिक वैल्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर दिए, जो कि 2 है यहाँ पे। और उसके बाद में अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो पहले लो आता है, तो लो को कंसिडर हम, तो यहाँ पे क्या होता है फिर? अभी लो और मॉडरेट पे 2 कॉलम बनेंगे। तो जितने भी यूनिक आपके यहाँ पे वैल्यूज आइडेंटिफाई होंगे उतने ही आपके कॉलम बनते हैं। ओके, एक कैटेगोरिकल कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई होता है पहले, और उतना ही नंबर के आपके कॉलम्स बनते हैं। मतलब यहाँ पे 2 हुए, कल जाके अगर 4 यूनिक आइडेंटिफाई होते हैं तो 4 कॉलम बन जाते हैं। यहाँ पे 5 होते हैं तो 5 6, ऐसे जितने नंबर ऑफ यूनिक आपके क्लासेस आपके आप आइडेंटिफाई होते हैं उतने आपके कॉलम बनते जाएंगे। विद दैट, पहला क्या है? एंट्री लो है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ट्रू, ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मॉडरेट, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ये क्या है? 0, सॉरी, दिस इज 1, दिस इज 0। ये क्या है? 0, दिस इज 1। ये है 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0। मतलब जो ट्रू है उस कॉलम में 1 आएगा, और जो ट्रू है उस कॉलम में 1 आएगा, बाकी जगह फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हर एक रिकॉर्ड को देखते हैं। अब इसके बेसिस में आप देखोगे तो जहां जहां पे भी आपके 1 वैल्यूज हैं उतने काउंट्स आपके लो के हैं और उतने काउंट्स आपके मॉडरेट के हैं। इससे समझेगा क्या कि अगर कुछ इस तरह का पहला रिकॉर्ड होगा, कुछ इस तरह का अगर पहला रिकॉर्ड है, तो वो क्या है? वो लो को दर्शाता है। मशीन समझ रहा है, देखो एक एक चीज समझ रहा है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बार बार क्या करते हैं हम? उसको ऐसे एक पिक्चर दिखाते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं? ये एप्पल है, उसका ऐसा पत्ता है, ये रेड कलर का होता है। ये जब सिखाते हैं ना तो बार बार एप्पल ही सिखाते हो। तो आज भी अगर मैं किसी को पूछता हूँ व्हाट इज ए फॉर, अभी भी हम सब एप्पल ही बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज रिटन इन आवर माइंड सच ए वे दैट इट इज बीन ओवर रिटन। लिख 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 के हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ए फॉर एप्पल ही होता है। इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू से दैट कि भाई मशीन आप ये अंडरस्टैंड करके रट लो। दैट इज व्हाट वी आर गिविंग। ओके, नहीं देते इसे रटने के लिए, नहीं देते, उसे भी हम अवॉइड करते हैं, दैट इज ओवर फिटिंग। बट वो आगे की बात है। बट स्टिल ना, अभी के लिए इतना करो कि ऐसे हम दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कि अगर इस तरह का इनपुट होगा तो लो होगा, इस तरह का इनपुट होगा तो मॉडरेट होगा। तो डिफरेंशिएट कर सकता है फिर वो, क्योंकि आप ऐसे लाखों के रिकॉर्ड उसे दे रहे हो तो डिफरेंशिएट कर लेता है। तो इस तरह से आप मशीन को सिखा रहे हो। दिस इज एनकोडिंग मेथड। और इसमें भी कौन सा एनकोडिंग मेथड है? ये है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग मेथड। In one hot encoding method, we create same number of columns which are unique in your categorical data. Okay, and now क्वेश्चन हो सकता है तो ठीक है, 4 3 4 5 तक ठीक है, लेकिन 10 भी, चलो 10 कॉलम भी यूनिक होंगे तो समझ लेंगे। 50 कॉलम अगर होंगे तो फिर तो डेटा सेट फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जो पहले हमारा डेटा सेट लेट्स से 100 रिकॉर्ड था और 5 ही कॉलम थे। अब कितना हो गया है वो? 5 इंटू 5 प्लस 50, 55 कॉलम हो गया। तभी तो बहुत बड़ा डेटा सेट हो गया। क्यों? क्योंकि 5 जो कॉलम थे उस कॉलम में से एक कॉलम में 50 आपकी कैटेगरी थे, तो उसमें से इतने बन गए क्लासेस में से, तो ये तो एक्सेप्टेड है। बट इंक्रीमेंट ऑफ सच ट्रेमेंडस कॉलम्स इन नंबर्स will give you a problem in let's say analysis, so we will not allow this. इसके अलावा हम क्या करते हैं? इतना ही नहीं, अगर 10 यूनिक वैल्यू से अगर ज्यादा आपका बढ़ रहा है, अगर इससे ज्यादा आपका कैलकुलेशन में कॉलम्स एक्सट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो सिंपली गो फॉर लेबल इनकोडर। अब लेबल इनकोडर क्या करता है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सिंगल और सेपरेट कॉलम्स एंड कंसिडरिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड विद वेदर ट्रू और नॉट, वहां पे क्या हो जाता है? सिंपली लो और मॉडरेट कितने यूनिक है? लो और मॉडरेट, ये 2 यूनिक है ना। लो को कर दो 0, 1 को कर दो 1, और अगर कल जाके हाई आएगा तो हाई हो जाएगा अपना 2, इसके आगे कुछ और आता है तो उसको हो जाएगा 3। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो पहले वो अरेंज करेंगे, फिर उसको 1 2 3, मतलब क्या है, 0 से लेके 1 2 3 4 हर एक को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। नंबर नंबर क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो लो होगा तो 1 आएगा, जहां जहां मॉडरेट होगा वहां पे, सॉरी, लो आएगा तो 0 आएगा, जहां जहां मॉडरेट होगा वहां 1 आएगा। मतलब इफ देयर इज लो
यहाँ पे 1, इफ देयर इज मॉडरेट देयर इज 2, सिंपल 1 2 1 2 1 2 या 2 2 1 करके जितना भी वो आपको वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई होंगे। उससे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ creating separate columns for each category, or let's say if not category but if classes, for each classes we'll create a single column where its identifications are measured or its identification are recorded. Is it clear? Is it clear guys? Yes, sir. यस सर। उस मेथड को कहते हैं लेबल एनकोडर। अब आप बोलोगे ये यूज कब करना है और वन हॉट कब करना है। आपके डेटा सेट में जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, लो और मॉडरेट में ऑर्डर है। क्या है? लो और मॉडरेट में ऑर्डर है, बिकॉज लो ऑलवेज कम आफ्टर मॉडरेट। ओके, लो आफ्टर कम ऑफ, है ना। लो कभी भी आता है, कब आता है? मॉडरेट के पहले, इजंट इट? मॉडरेट ऑलवेज कम आफ्टर लो। ओके, अगर आप क्रमांक में देखोगे ऊपर, अभी अगेन कैसे लिखते हो उस पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर कभी भी मॉडरेट ऊपर होता है और उसके नीचे आता है लो, ओके, तो लो के बाद ही ऊपर या फिर उसके बाद ही मॉडरेट आता है। अगेन यहाँ डिपेंड्स ऑन, बट दिस इज ऑर्डर कि भाई हायरार्किकल ऑर्डर में लो पहले आता है और फिर बाद में मॉडरेट आता है और फिर बाद में हाई आता है। तो अगर आपके डेटा सेट में कुछ इस तरह से अगर हायरार्किकल डी है, अगर हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो होता है, तो आपको हमेशा लेबल इनकोडिंग में जाना चाहिए। पर अगर आपके डेटा सेट में फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि जैसे ये ए है, एम्बार्क करके है, SC, यहाँ पे कोई ऑर्डर है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? वन हॉट एनकोडिंग में जाना है। मतलब इफ योर डेटा इज फॉलोइंग एनी hierarchical or let's say order in your column, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो पोजीशन, रोल, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ASM, देन TL है, फिर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्या आपके कुछ ऑर्डर होने फॉलो, तो वहाँ पे क्या होता है, M को पहला, इसको दूसरा, ऐसे ऑर्डर वाइज उसको मार्किंग किया जाता है, क्योंकि आपके डेटा सेट में नेचुरल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं एम्बार्क, कौन कहाँ कौन से कैबिन में जाएगा, वो तो डिपेंड है कि आप कैसे, किसको क्या प्रेफरेंस, क्या कैसे दे रहे हो ना। सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ स्केलिंग में अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड स्केलिंग इन बेटर वे, सो आई विल नॉट स्टार्ट विद टुडे। कल आएंगे तो कल हम स्केलिंग भी स्टार्ट करेंगे ताकि समझ सको, बिकॉज स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ टाइम नॉर्मली वी डू गेट कंफ्यूज्ड कि भाई दोनों सेम है, फिर क्यों अलग अलग कहे जाते हैं, बट yes there is a huge difference in between them. Okay, so today we'll stop over here. Tomorrow when you will come, we'll have again continue with this particular session and applying over our data set like this, that how we have applied over here, we'll be applying on this data set to understand how it is going to practically implement it. Is it clear? यस सर। Okay, fine. Thank you for the presence. Thank you all. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, good night, take care. सर एक पूछना है, Yes सागर बोलिए। प्रोसेस कैसे करते हैं? मतलब एक्सेल का जो डेटा है इस पे हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद जब ये सीक्वल में जाता है तो हम लोग डेटा सीक्वल में लाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर पावर बीआई में जाते हैं। सही। अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी एक डेटा सेट लिया है ना, वैसे वहाँ पे भी एक डेटा सेट लेंगे जहाँ पे हम उस पर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, कोई किसी किसी कंपनी में एक्सेल होता है जो एक्सेल यूज करने को देते हैं, तो वी विल फॉलो एक्सेल मेथोडोलॉजी। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास MySQL उसी में आपको करना है, तो देयर यू शुड ऑल्सो लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। सो वहाँ पे भी हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, वैसे ही पाइथन में भी और पावर बीआई में भी। ओके, ओके, मतलब एक्सेल से सीक्वल जाएगा, सीक्वल से पावर बीआई जाएगा, ऐसे नहीं है मतलब। पाइथन, हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे भी हम करेंगे। विल पुश, एक CSV फाइल है जहाँ पे हम डेटा सेट में क्लीनिंग करेंगे, सब करेंगे, और वहाँ से उसी को हम पुश कर सकते हैं। बट अगेन पुश करने का होता है, डेटा प्री प्रोसेस करने के लिए कुछ रहेगा नहीं वहाँ पे, इजंट इट, क्योंकि प्रोसेस कर चुका होगा। सो विल गो फॉर डिफरेंट डेटा सेट। ओके, ओके, मतलब दोनों अलग अलग प्रोसेस। या थैंक यू। ओके। सर या वेंकट बोलिए। सर फिल्टर्स डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होते हैं? फिल्टर्स डेटा होते हैं ना, क्यों नहीं होते? अब जैसे क्यों ऐसे नहीं? सिंगल कॉलम में मल्टीपल फिल्टर्स अगर वो करना हो तो।
सिंगल कॉलम में मल्टीपल फिल्टर्स. या ओके. लाइक अगर सिंगल. कंट्री और हाँ. रीजन एक ही कॉलम में दिया हो तो और उसमें जो है अलग अलग कॉलम में नहीं डिवाइड करना क्योंकि कॉलम्स बढ़ रहे नहीं, एक होंगे. ही कॉलम में कैसे मतलब देंगे फिल्टर के लिए? आई डिडंट गेट. कंट्री और रीजन हमेशा अलग ही कॉलम में रहेगा. व्हाई जैसे एनीबॉडी वुड गिव? महाराष्ट्र इंडिया एक एक कॉलम में लिखा हुआ है कॉमा लगा के सिंपली, तो उसको सेपरेट करके उसमें फिल्टर्स अप्लाई करेंगे कि. हाँ, यस यस यस, सेपरेट करके करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो पहले फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको अगर कभी भी डेटा सेट में टेबल जब बनता है तो कभी भी डिपेंडेंसी ऐसे एक दूसरे, एक सेल में कभी भी एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए. दैट इज अ टेबल क्रिएशन का जो एक पर्टिकुलर रूल है कि वन सेल शुड कंटेन ओनली वन एट्रीब्यूट और वन इंफॉर्मेशन. इट शुड नॉट हैव बोथ. उससे होता क्या है कि जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो हमेशा प्रॉब्लम आता है. ओके, वी शुड नॉट डू दैट. जैसे किसी का मोबाइल नंबर है, अब डुअल सिम का जमाना है तो ऑब्वियसली सबके पास एक दो नंबर तो होंगे ही होंगे. बट क्या हमें एक सेल में दोनों नंबर लिखना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट. वी शुड ऑलवेज हैव, ऑल्दो आपको शायद उसका नाम वापस एक रो में रिपीट करना होगा, बट दैट्स फाइन. बट अगेन यू हैव टू टेक दैट. ओके, या तो उसके ओके आगे लिखो ओके सर, तो नंबर 2 करके. फिल्टर्स का भी कुछ इंट्रोडक्शन देंगे सर इसमें क्लास में. हाँ देंगे, क्यों नॉन नहीं भी है. यस यस, देंगे देंगे, कोई इशू नहीं. बट फिल्टर कैसे, मतलब अप्लाई करते समय है कैसे, मतलब मतलब आपको? एनालिटिक्स के पर्पज से बस, कि मतलब जैसे क्या है बहुत बड़ा डेटा, क्योंकि मिलियंस ऑफ डेटा रहता है डेटा सेट में. तो हाँ. उसमें जब फिल्टर्स यूज करके सिंपली एनालाइज करना हो कि किस रीजन में कितने हैं या फिर या किस कंट्री के उसको टारगेट करना होता है. मेरे ख्याल से आप स्लाइसर बोल रहे हो. आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्टर्स, आई थिंक. हाँ, स्लाइसिंग एंड फिल्टर्स. ओके ओके, ठीक है ठीक है, आई शो. ओके, ओके विल ओके, डू. थैंक यू सर. ओके गुड नाइट सर. ओके, गुड नाइट.